Hello everyone, welcome back to 5 Bean Podcast where we explore the complexities of relationship and personal growth. Today we delve into the topic of relationship issues, navigating communication breakdown, trust and maintaining a healthy balance. This is your host Krish Mehra and today I'm not alone, I have a very special guest with me, Priyanshi Bhardwaj. So Priyanshi, we will delve into the right into the question related to relationship issues. Comfortable? So first, how do you navigate argument with your partner in a healthy way? First of all, if the argument is getting too heated, we each take a step back, and then after a little bit, half an hour, 1 hour, we come back with a calm mind and we talk about it around. So second question, how to deal with jealousy that creeps up in a relationship? With jealousy, you can't do much other than trust your partner. If your partner is giving you reasons to be jealous, honestly reconsider the relationship. But even in a normal healthy relationship, sometimes there is jealousy, but the only thing you can do is talk about it, talk to your partner about it, and just work on it. Do you think the trust issues बीच में आ जाते हैं? It depends on the person. सबके अलग अलग issues होते हैं, and by trust issues में like every other issue, you just have to work on it. Alright. How to maintain excitement and romance in a long-term relationship? In a long-term relationship, you just need to constantly, talk to your partner, go on dates, give each other small gifts. Like बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे पैसे खर्च करके कुछ दे रहे हो. छोटी छोटी चीज़ें, एक फ्लावर ला के दे दिया, एक लेटर ला के दे दिया, लिख कर रखो. तो it just helps a lot. Do you think कि girls like this kind of thing? बहुत ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ें करोगे तो फॉर अस इट फील्स लाइक अ बर्डन कि इतनी मेहनत कर रहे हो, बुरा लगता है, अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हो. तो इसलिए ऐसी छोटी मोटी चीज़ें दैट हेल्प्स अ. And what if the partner does not do these kind of things? And would you reconsider the relationship? थोड़ा सा, बट यू ऑल्सो हैव टू टॉक टू योर पार्टनर. उनको दे आर नॉट अ माइंड रीडर. सब पता नहीं चल जाएगा कि मेरे को लेटर चाहिए, है ना. उनको बताना पड़ेगा. Communicate. Yeah. Okay. The fourth question would be the how to stay connected and keep the love alive when you are physically apart. फॉर मी मेरा अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, तो उसमें वी मेक टाइम फॉर ईच अदर. जैसे वी हैव अ स्पेसिफिक टाइम कि अगर दिन में चाहे पूरे दिन बात ना हो, रात में लाइक आफ्टर यूर फ्री लाइक डिनर वगैरह करके फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, 20 minutes, हाफ एन आवर वी सिट, वी टॉक टू ईच अदर, वीडियो कॉल करके ऐसी बात करते हैं. एंड दैट टाइम लाइक और किसी से ऐसे कि कोई आ गया रूम में, बात करने लग गए, इग्नोर कर दिया, वैसा कुछ. तो बैठ के जस्ट मेक टाइम. Do you think कि जो एक तो स्टार्टिंग में तो एक साथ रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में होता है स्टार्टिंग में, अगर लॉन्ग डिस्टेंस के बाद आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप में कुछ कुछ इशूज और जैसे कम प्यार हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें या टाइम कभी कभार कोई नहीं निकाल पाता और किसी बात से कोई बंदा इरिटेट हो जाता है, कोई भी दूसरा पर्सन जो रिलेशनशिप में, तो आप कैसे चीज़ को जैसे कोई इरिटेट होने वाली बात है, अगर टेक्स्ट है तो यूजुअली जैसे लोगों के टोन समझ नहीं आते, तो उस टाइम पे कॉल करके बता दो कि मैंने ऐसे गुस्से में नहीं बोला था, मजाक में बोला था या कुछ. एंड मेरा था फर्स्ट मंथ साथ में थे, फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, तो इतना कुछ लगा नहीं कि प्यार कम हो गया या कुछ. इट वॉज जस्ट कि थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है, याद आती थी बस. तो ये जैसे अभी आप कितने मंथ हो गए आपके? मुझे 8 months. तो सब सही बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया. Nice. Next question would be how to navigate different friend groups or social group as a couple. मेरा जो है, आई एम एन इंट्रोवर्ट. मेरे मुश्किल से 2 दोस्त होंगे एंड ही इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट. इसके बहुत सारे दोस्त हैं, ग्रुप बिल्कुल ही अलग है. द ओनली थिंग हमारा ये है कि जो हेल्प किया कि बस इंट्रोड्यूस करा दिया अपने दोस्तों को, सबसे मिल लिया, बात हो गई.
he is very close friends with my best friends and all, and उसके सारे जितने भी दोस्त हैं मैं भी उनसे अच्छी खासी बात करती रहती हूँ. मैं just like कि बात करवा दो मिलवा दो and तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. जैसे अभी आपका लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है अभी, तो जैसे वो बाहर रह रहा है आपका बॉयफ्रेंड, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब क्या कहते हैं वो किसी और लड़की के साथ रहना है? इतना तो ट्रस्ट है कि किसी और लड़की के साथ नहीं होगा. तो ट्रस्ट अपना बिल्ड करना पड़ता है या अपने आप ऐसे धीरे धीरे हो जाता है? सबका अलग अलग होता है. मेरा माई पार्टनर डिड नॉट गिव मी अ रीज़न टू नॉट ट्रस्ट. उसने ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं कि मेरे को ये शब्द की दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है ना, आवारागर्दी कर रहा है या कुछ. तो डज ही हैव अ लॉट ऑफ गर्ल फ्रेंड्स? नहीं, उसकी एक दोस्त है, लाइक वन फीमेल फ्रेंड, एंड वो मेरी ज़्यादा अच्छी दोस्त है उससे. उसके कॉलेज में है. डू यू थिंक कि थोड़ी सी जेलसी आ भी जाती है बीच में अगर वो ज़्यादा क्लोज हो जाता है आपके बेस्ट फ्रेंड से या कोई और भी लड़की? इतना कुछ नहीं होता. इतना Really? ज़्यादा फर्क नहीं होता. थोड़ा सा तो लगता है बट एट द सेम टाइम इसलिए कि कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा. Who knows? ऐसे बोलना उसको फिर कुछ नहीं हो सकता. Fifth question would be what to do when you and your partner have different life goals or ambitions? उसका जो है his goal is set. He wants to become like उसको पूरा साइंस फील्ड में बहुत पढ़ना है ना. एंड मेरा ज़्यादा कुछ है नहीं. मेरा इट्स लाइक वेरी चल रहा है. तो हमने इस बारे में डीपली कुछ बात करी नहीं अभी तक. बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन में जा रहे थे फ्यूचर में क्या करना है ना, करियर किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है. तो इस बारे में ज़्यादा कुछ कमेंट कर नहीं सकती. आप दोनों वैसे मिले कैसे थे? मतलब स्कूल में एक ही बैच? हाँ, से समझता है. तो मतलब तब से ही friends? नहीं, उसका पहले से था कि आज भी और बहुत पहले एक बार फिर फर्स्ट टाइम आप यू रिजेक्टेड आई रिजेक्टेड बिकॉज मैं उस समय क्या स्कूल में ये नहीं आई थी. स्कूल में नहीं आई थी. मेरे से तो कुछ बात फीलिंग नहीं थी हुई. हाँ. मतलब इससे नॉट माय गाय? हाँ. नहीं, ये भी नहीं था उस समय. मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं था किसी में भी. मेरे को आने ही नहीं था रिलेशनशिप्स में. आने नहीं था क्यों? कोई रीजन मतलब पहले एक्सपीरियंस कुछ नहीं था. फर्स्ट से याद है आपका नहीं सर, मतलब एक्सपीरियंस की वजह से आपका कोई भी एक्सपीरियंस. आई मेट हिम बिफोर आई हैड एनी एक्स है ना. फिर इसने आस्क आउट किया, मना किया. फिर उसके बाद कुछ बात नहीं हुई. फ्रेंड ग्रुप्स अलग थे, सेक्शंस अलग थे, तो इतना इंटरेक्शन होता नहीं था. फिर जब कॉलेज शुरू होने से पहले मेरा जो दोस्त है वो उसका दोस्त है, मेरा कॉमन फ्रेंड. तो बात हुई, साथ में घूमने लगे. फिर उसके बाद Good. Your sixth question would be how to support your partner through challenge. through a challenge, like first listen to them and second अगर उनको बात नहीं करनी है जिसमें चैलेंज है, लोग बात करना प्रेफर नहीं करते हैं, खुद में अपने आप ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो गिव देम टाइम है ना, अपने आप आके बताने को जितनी भी देर लगे. इतना ऐसे प्रेशर नहीं करना कि आके मेरे को बताओ क्या हुआ हर रोज़ पूछ रहे हो, हर घंटे पूछ रहे हो. जब वो बताएंगे लिसन एज बेस्ट एज यू कैन एंड उनसे पहले पूछो कि तुमको एडवाइस चाहिए या नहीं. फिर अगर वो बोले कि एडवाइस दो कुछ, तो ट्राई योर बेस्ट टू हेल्प. जैसे इसमें लिखा हुआ है करियर चेंज एंड चैलेंज. तो अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी मैं स्पेसिफिक्स मेरे को भी नहीं आती. बहुत ही कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ कर रहा है वो. बस द मोस्ट आई नो ही इज़ डूइंग फिजिक्स में एंड मरीन बायोलॉजी में कुछ कर रहा है. तो मतलब आपको कोई वैसे कोई दिक्कत या कुछ मुझे ऐसे कुछ दिक्कत नहीं. चीज़ है बट नहीं है? हाँ, वीज़ा मेरा है. Second question would be how to navigate grief or loss together as a couple. Grief or loss together as a couple. Just be
be there for each other, इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं है हमने. हमारा अभी तक तो बस मस्त चल रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है. कोई अभी कोई किसी बात में जैसे लड़ाई वड़ाई है कुछ किसी से रिलेटेड कुछ हो? हमारी लड़ाई नहीं होती है. ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं उसको कुछ बोलती हूँ, वो बोलते हैं कि ठीक है कर दूँगा, बस खत्म. बस हाँ हाँ तक तो चला जाता है. So next question would be, what could be the right age to start dating that would help both parties eliminate a few issues? The right age I think should be 17-18 because उससे पहले you're not mature enough to handle someone else's emotions. खुद के तो emotion handle करते ही हैं. You're growing up पूरा it's too much. उस टाइम पे if you get into a relationship काफ़ी दिक्कतें आती है. टॉक्सिक हो जाती है relationship. You don't communicate well. अगर if you're mature enough to handle it तो उससे पहले कर दो. But personally, I would suggest be like 17-18 is your age. उनकी मर्जी, किसी को रोक तो नहीं सकती हूँ मैं. The next question would be, there is this taboo that goes around that if men shows emotion in a relationship, that makes them portray as a weak. What would be your take on that? Honestly, it's false. I want my partner, my boyfriend to show emotions. क्योंकि there is no one in this world कि कोई बिल्कुल ही emotionless है. It does not mean you're weak. That is just bullshit. हाँ तो like I want my partner to show emotions. I want to be able to be there for them, comfort करना. क्योंकि जितना अपने अंदर सारे emotions hide करके रहोगे उतने ही you will get more and more issues down the line. As a boy, मैं अपनी experience बता रहा हूँ. अगर हम emotion show कभी कभार इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें नहीं पता होता आगे वो कैसे वो रिएक्ट करेगा या कैसे वो हमें कंसोल करेगा. तो इसलिए हम ज़्यादातर सोचते कि हम वीक पोर्ट्रे ना करें. बेटर रहता है कि क्योंकि टू बी ऑनेस्ट लड़के ज़्यादा मैच्योर होते हैं रिलेशनशिप में. मानो ना मानो लड़कियाँ थोड़ी टफ होती हैं. मन का बहना गलत है. बंद का मैंने मन का बहना. अच्छा ओके. तो आपको नहीं लगता कि अगर इमोशन शो ना करें इमोशन शो करना चाहिए. और अगर कोई नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा तो फोर्स थोड़ी कर सकता है. तो उससे थोड़ा सा वो जैसे एक इंसान के अंदर फिल्डअप हो जाती है. थोड़ा गुस्सा अगर कभी आ रहा है तो वो और जितना ही अंदर रहेगा फिर एकदम से सारा फटेगा. हर चीज़ पर हर छोटी छोटी चीज़ पर चिल्ला रहा है. तो इट्स बेटर टू लाइक अगर कुछ ऐसे छोटा मोटा होता है बता दो, बात कर लो. इमोशंस है you need to have someone to talk to. नहीं अपने में रखोगे नहीं चलेगा. So next question would be, how do you maintain a balance between independence and togetherness in your relationship? You need to make time for both of you. You need to make time for your own self, for your own personal growth. है ना, अपनी mental health के लिए you need to have some self care. और togetherness का है साथ में हो तो try to give your undivided attention, especially if you're in a long distance relationship. ज़्यादा मिलते नहीं हो, like महीने में एक बार 1-2 दिन के लिए मिल रहा मुश्किल से, तो उसमें try to give your undivided attention. वरना फिर कोई अच्छे की attention नहीं मिली, फिर doubts आ जाते, फिर उधर से वही trust फीलिंग कम हो जाती है बेसिकली. जो अगर प्यार करते हैं फीलिंग कम होना तो थोड़ा बाद में आता है. पहले आता है ट्रस्ट इश्यूज जैसे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रस्ट इशूज कैसे आते हैं? जितना बात नहीं करोगे उतना लगेगा कि मेरे से इतना बात क्यों नहीं कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है, इज दैट सम अदर पर्सन. तो वो तो ओवरथिंकिंग हो गई. हाँ तो ओवरथिंकिंग से वही अटेंशन नहीं दोगे, ओवरथिंक करेंगे, फिर उसके बाद इश्यूज देंगे. Thank you, Sachi, for giving me the answers. It was very helpful and informative. So